جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مسئلہ کراچی کے کنٹرول کا ہے، کیونکہ جغرافیائی حدود کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی کو 5 اضلاع میں تقسیم کیا گیا اور کہا جاتا ہے جو کراچی میں داخل ہونے کے 3 راستے ہیں اس پہ پشتون کنٹرول ہے، اور جو ساحل کا ایریا ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، جو مرکز کا ایریا ہے، جو سینٹرل ایریا ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے۔ تو لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ کراچی کے کنٹرول کا پرابلم ہے۔ میں شاہی سے یہ سب سے بھی پوچھ لوں گا۔ میں ایک دو جملے عرض کروں۔ دیکھیے، پہلے میں عرض کروں گا، جو بھی ہے واردات ہوتی ہے اسلحے سے، اسلحہ واپس لیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں پہلے اس سے جو نواز شریف صاحب نے میں سمجھتا ہوں ایک تجویز پیش کی ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا جائے، بلکہ مشترکہ دونوں ایوانوں کا بلا لیا جائے، اس میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں ایک فارمولہ حکومت کو دیا جائے اور ایک اس کے ساتھ حتمی تاریخ بھی دی جائے۔ اور اگر حکومت ایک تو تاریخیں حکومت آپ سے تنگ آگی نا، کہتے ہیں ایک تو تاریخیں آپ بہت دیتے ہیں، الٹیمیٹم دیتے ہیں، تاریخیں دیتے ہیں، یعنی 5 سال یہ حکومت اس طرح کرتی رہے گی؟ 3 سال تو گزر گئے نا، کروا کون رہے ہیں؟ دیکھیے نا، میں عرض کروں اگر وہ نہیں کرتی تو پھر کم از کم تب ایک تو میں نے یہ کہا تھا اسٹرانگ میسج جائے، ٹھیک، اس سے حل ہوگا، لیکن اس مسئلے کی جو جڑیں ہیں، سارا گند ہے وہ نکالنا ہے، اور اس کے لیے پھر اپوزیشن جو ہے وہ ساری اکٹھی ہو، مسلم لیگ نون اس کے لیے، ملک کے امن کے لیے، کراچی کے شہریوں کی جان و مال کے لیے، اس اکنامک ہب کو سیو کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی، اپوزیشن اکٹھی ہو جائے اور ایک تاریخ دے۔ کراچی میں تو اکٹھے نہیں ہو سکتے شاہی سے، یہ سب 3 کولیشن پارٹنر ہیں، اپوزیشن پھر کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ نے کہا تھا کہ فوجی آپریشن ہونا چاہیے، صدیق الفاروق صاحب نے کہا فوجی آپریشن ہوگا تو فوجی عدالتیں لگیں گی، تو آپ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اصل میں ایک چیز آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے فوج بلانے آپریشن کے لیے سیم لائف جس طرح دنیا میں فوجیں اس ملک کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، قوم کے عوام کے اسی کے لیے اس پرپز جو کلر یہاں پہ ہے، جو بتہ مافیا، لینڈ مافیا، ٹپا مافیا، ڈرگ مافیا، ان کے لیے میں نے حکومت کے لیے کبھی نہیں بولا۔ آپ لوگ شاید ہمارے پاکستانی اس فوجی حکومتوں کے بار بار آنے سے ہر بات یہ سمجھتے کہ جیسے شہید نے فوج کو دعوت دے کے حکومت کا، حکومت نہیں، وہ فوج ہمارا ہی فوج ہے۔ اور یہ ابھی جو سواد میں فوجی شہید 2500 جوان شہید ہوئے، بولنا تو بہت آسان ہے، وہ ہمارے بچے، ہمارے بھتیجے، ہمارے بانجے ہیں، وہ کوئی غیر ملک کا فوج نہیں شہید ہوا، 10,000 فوجی جب ہوئے تو صرف اور صرف اس پرپس کے لیے کہ یہاں پہ کرمنل وہ کسی قوم کا ہو، کسی پارٹی کا ہو، کسی مسلک کا ہو، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار آپ لوگ اور دنیا والے اپنے ذہن کو واش کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے فوج کو بلا کے حکومت دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو جمہوری حکومت ہے ان کی مدد کے لیے ہماری فوج ہے، ہمارے بچے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے یہاں رینجرز پہ بھی اعتماد ہے، چونکہ رینجرز یہاں کم پڑتی ہے، رینجرز کو پورا اختیار نہیں ہوتا ہے، پولیس پہلے ناکام ہو چکی ہے۔ جس طرح صدیق الفاروق صاحب نے بتایا کہ کراچی آپریشن کا ایک پولیس والا مارا گیا، ان کی بیواؤں کو وہ پینشن کے پیسے بھی پورے نہیں ملتے، ان کو جو تکلیفیں آ رہی ہیں، آج سندھ پولیس بالکل برملا کہتی ہے کہ ہم ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے۔ اچھا، ایسے لوگ ہیں کراچی میں بلدیہ میں ایک آدمی کے 3 بیٹے، ایک بیٹا مار دیا، ایف آئی آر کاٹ کے، دوسرا بیٹا گواہ تھا، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد دوسرے بیٹے کو مارا۔ جب لوگوں نے کہا کہ ایف آئی آر کاٹو، اس نے بولا کہ میرا تیسرا بیٹا ہے، میں ایف آئی آر نہیں کاٹوں گا۔ عوام کے ابھی بدزنے، پولیس پہ ٹرسٹ نہیں ہے، جہاں پہ اعتماد ہی نہیں ہوگا اس کے اوپر آپ کیسے زندگی گزارو گے؟ لوگ جو زندگی آپ کہنے کیسے گزاریں گے؟ مطلب یہ کہ وہ آ جائے اور وہ صحیح آپریشن کرے، وہ کسی قوم کے خلاف نہ ہو، کسی آدمی کے خلاف نہ ہو، میں شرمیلا سے پوچھ لیتی ہوں۔ شرمیلا، ذوالفقار مرزا صاحب نے کہا تھا لاسٹ ایئر فروری میں سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو پتا ہے کہ کون لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، اور فوجی آپریشن کا بھی، فوج کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ بلایا جا سکتا ہے، اور جو ابھی شاہی سے یہ سب بات کر رہے ہیں کہ وہ فوج آئے، معاملات کو ٹھیک کرے اور پھر واپس جا سکتی ہے، اچھا حل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، میں پہلے ہی اسما یہ بات کہہ چکی ہوں کہ اس وقت خدا نہ خواستہ ایسی کوئی سوات لائک سچویشن نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو فوج کو فوری طور پہ بلانا پڑے۔ اس وقت رینجرز اور پولیس موجود ہیں، اپنی کارروائی کر رہی ہیں۔ جہاں تک ذوالفقار مرزا کا تعلق ہے تو دیکھیے وہ ہوم منسٹر ہیں، ظاہری بات ہے ان کے سامنے جی آئی ٹی کی رپورٹس آتی ہیں، ان کے پاس انویسٹیگیشن کی رپورٹس آتی ہیں، تو ان کو ایک آئیڈیا تو ہے کہ اس میں کون کون لوگ کہاں کہاں ملوث ہیں۔ اب دیکھیے میں یہ نہیں کہوں گی کوئی بھی سیاسی جمہوری جماعت کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، کیونکہ جب آپ عوام کے پاس جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ عوام کی خدمت بھی کریں اور امن امان جو ہے وہ بحال رکھیں۔ دوبارہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے، ایم کیو ایم نے بھی جانا ہے، اے این پی نے بھی جانا ہے۔ لیکن کراچی میں ہو کیا رہا ہے شرمیلا؟ 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں معاملات کمیٹیز کے پاس ہیں،
कौर कमेटी है, फिर उसमें मामला तय होते हैं, ANP कहती है उनको बुलाया नहीं जाता, गवर्नर हाउस में जो मीटिंग कि मामला तय हो जाते हैं, वहां तक रहमान मलिक तक जाते हैं, उसके बाद वहां नहीं होते तो फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तक जाते हैं, लेकिन मामला तय हो जाते हैं। इश्यूज हैं, देखिए चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपस में तमाम जमातें जो हैं आपस में भाई भाई हैं, ये तो मैं बड़ा गलत स्टेटमेंट दे रही होंगी। इश्यूज हैं ना, माजी की तलखियां हैं, और जो टॉप लीडरशिप में जो मुफाहमत है वो कारकुनान में नहीं होते। शर्मिला, 3 साल तो हो गए आपकी हुकूमत को, 3 साल हो गए, 2770 अफराद आपके दौर में कराची में टारगेट किलिंग्स का शिकार हुए। जब हमारे दरमियान तलखियां रही हैं, वो क्या 3 साल में सब मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी? देखिए, एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमने ये बेड़ा जरूर उठाया, क्योंकि हम सबसे बड़ी सियासी जमहूरी जमात है कि हम तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेके चलें, लेकिन इसमें वक्त लगता है। देखिए, आप कभी टॉप लीडरशिप से कोई ऐसे बयानात नहीं सुनेंगी जिससे आवाम में इश्तियाल फैले, लेकिन आप जो सेकंड थर्ड टियर है उसमें आप देखेंगे इश्तियाल में आ जाते हैं। वी हैव टू शो पॉलिटिकल मैच्योरिटी ओवर हियर, क्योंकि जब हम टीवी चैनल्स पे बैठ के ऐसी बातें करेंगे तो कारकुनान सुन रहे होते हैं, उसमें मजीद बेचैनी इश्तियाल फैलता है। कादर पटेल ने क्या स्टेटमेंट दिया था? कादर पटेल के स्टेटमेंट बता दो कि तलखियां एक लम्हा कि इन्होंने कहा तलखियां, क्या ये तलखियां पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान 80s और 90s में नहीं रही? पंजाब में रही, पंजाब में काफी इकट्ठे काम कर, बलोचिस्तान में रही, ये तलखियां सूबा खैबर पख्तूनख्वा में रही, इंटीरियर सिंध में रही। क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के कारकुनों को कत्ल किया? क्या हमने टारगेट किलिंग की? या क्या यहाँ अपना जो ANP है उनके कारकुनों ने सूबा सरहद में खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ टारगेट किलिंग की? ये टारगेट किलिंग माजी की तलखियों की वजह से सिर्फ कराची में क्यों हो रही है? और फिर अभी शर्मिला फारूकी साहब ने यह भी कहा कि जी जब हम आपस में इस तरह होता है तो कुछ तीसरी कुव्वत भी करती है। भाई यही तो देखने की चीजें हैं। बाकी जगह तलखियां भी हुई, दुश्मनी भी हुई, बयानात भी हुए, एक दूसरे के ना कारकुनों को कत्ल किया गया, ना लीडरों को कत्ल किया गया। ये मामला कराची में क्यों है? प्रेस कॉन्फ्रेंस यही हमने देखना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। हम ये नहीं कहते कि उर्दू स्पीकिंग को कत्ल किया जा रहा है, ठीक, आप पंजाबी को कत्ल किया जा रहा है, हम कहते हैं तमाम पाकिस्तान के शहरी हैं। हम भी, हमारे भी कारकुनान शहीद हुए, हम भी बैठ के कह सकते थे कि सिंधी को मार दिया। लेकिन देखिए, ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए, ये हमें समझना पड़ेगा। और मैं अपनी दोनों जो मेरी मोहतरम इत्तेहादी जमातें हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि देखिए, जज्बात को कंट्रोल में रखें। ठीक है, हमें भी तकलीफ उतनी ही होती जितनी इनको होती है कि जब कारकुनान शहीद होते हैं या आम शहरी जो है वो कत्ल होता है। लेकिन अगर हम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, अगर हम बैठ के दहशतगर्द क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ही मजीद इश्तियाल अंगेजी में इजाफा होता है, टारगेट किलिंग्स में इजाफा होता है? कि अगर टॉलरेंस लेवल दोनों जमातों में नहीं है, MKM और ANP में नहीं है, तो फिर हालात तो मजीद बिगड़ते हैं। आसमा, बात यह है कि हम कोई पलाट नहीं मांग रहे, इनसे कोई वजारत नहीं मांग रहा है, हम सिर्फ कातिलों को पकड़ना मांग रहे हैं। अगर कातिल पकड़े जाए, जेलों में चले जाए, हालात ठीक हो जाए, तो हमारे सरहंगों पे हमारी एक वजारत भी इनको वापस चाहिए तो ले हमसे, हमें मारे मत। यहां जो भी मरे, किसी इंसान पाकिस्तानी को ना मारे। कत्ल जितना वारे तेरे में नुकसान नहीं हुआ वहां पे, जितना हमारे कराची में जो किलिंग हो रही, तादाद गिन ले। ये बच्चों की बातें नहीं है। एक इंसान की कदर रोजाना 21-25 की लाशें जाती हैं। आप बोलते हैं कि कराची में हालात अच्छे हैं, या कोई ऐसा नहीं है, खराब नहीं है, खराब है। बाकायदा मैं ये कहता हूं कि मैंने अभी 4-5 दिन हो गए, मैं किसी पार्टी का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं? इसलिए कि मैं इश्तिहार नहीं देना चाहता हूं। हमें भी तरीका, अभी जो बशीर जान के कातिल पकड़े गए वो कौन है? मैं तो खाली बोलता हूं कि मैं किसी पार्टी का नहीं बोल रहा हूं, मैं इदारों को बोलता हूं कि उन बंदों को मीडिया पे ले आए, बताए वो कौन है, किस पार्टी से वास्ता है, किसने उसको पीछे लगाया। तो अगर ये चीजें नाजायज है तो आप सब मुझे बताए, दुनिया वाला मुझे लिखे, खत लिखे, मर्दाना स्टेटस पे खत लिखे कि मैं मुंह बंद कर दूं। मैंने तो काफी हद तक मुंह बंद करके रखी है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। लेकिन आप कह रहे हैं मुंह बंद करके, लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप बिल्कुल, आप मरने वालों को आप कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने उनका नाम लिया और फिर उन्होंने आपका नाम लिया। नहीं, मैंने कल कोई नाम नहीं लिया। आप साबित करे, कल वो प्रोग्राम चलाए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने बोला कि जब तक ये लैंड माफिया, ड्रग माफिया, भत्ता माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर वो अपने आप को वो लैंड माफिया, ड्रग माफिया समझता है तो उनकी समझ है। मैंने मुत्तहिदा कौम मूवमेंट का नाम नहीं लिया। कोई साबित करे, चले आपका इशारा उनकी तरफ नहीं था, क्योंकि मुझे मरकजी क़यादत ने बताया था कि आपको लेवल सही और कम रखना है, और मैंने रखा। ठीक, आपने लेवल अपना कम रखा, लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ से ब्लड प्रेशर हाई हो गया। फारूकी साहबा ने कहा कि जनाब हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि सिंधियों को पहले कत्ल किया। जब भी कोई इंक्वायरी होती है, जब भी मुजरिमों के बारे में
फैसला होता है कि उन्हें पकड़ना है तो ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है। पाकिस्तान कराची में, सिंध में हमें 1983-84 से लेके 2011 तक जो किरदार रहे हैं, जिन किरदारों के जरिए कत्ल गारतगरी हुई, जिनकी वजह से वहां से महाजरत हुई, लोग शहर को छोड़ के कराची को भागे, जनाब सूबा सरहद में भागे, पंजाब में आए, कारोबार उनके बर्बाद हुए, भत्ते किन से लिए गए, ये इन्होंने अभी शर्मिला फारूकी ने बड़ी यानी आराम से बात कह दी कि देखें जी इलेक्शन जो होने हैं तो MQM भी इलेक्शन में जाएगी और पीपल्स पार्टी। लेकिन मेरे कराची में अजीज हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मेरा आना जाना एक अरसे से है, वो तो खुल के कहते हैं कि 3 दिन पहले आते हैं MQM वाले, हमसे शिनाख्ती कार्ड ले जाते हैं और उसके बाद वहां जो मुलाजमीन होते हैं सरकारी, यानी इलेक्शन का अमला, वो मिला, उन्होंने कहा हमें यह रगमाल बनाया जाता है। यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट्स देखें 2008 के इलेक्शनों में उन्होंने मुतफिका तौर पर उन ऑब्जर्वर्स ने कहा कि MQM का ये जो मैंडेट है ये क्लाशनिकोव का मैंडेट है। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उन्होंने किस तरह जाना है, उन्होंने तो ले लेना शिनाख्ती कार्ड, ठप्पे लगाने में, इसलिए ठप्पा माफिया कहते हैं। तो इन सारी चीजों का नहीं, 2 जुमले और, इन सारी चीजों का अहाता करते हुए अगर MQM की क़यादत इस बात की जमानत दे कि वो अपने अंदर अगर चलें, अल्ताफ हुसैन साहब को नहीं पता, लेकिन जो ठप्पा माफिया है उसको निकालें अपने आप से, दहशतगर्दों को निकालें अपने आप से। गुफ्तगू सुनने और उस पर गौर भी करें। जार वली साहब की एक स्टेटमेंट है शाही सैयद साहब, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी हकीकत को माना जाए, हम जानते हैं कि 80s में जिस जमात की वहां पे पावर थी, लेकिन अब 2010-11 की वो बात करते हैं तो उनका पश्तून का भी कंट्रोल है। मसला क्या हकीकत यही है कि आपको माना जाए, आपकी जो हैसियत है इस वक्त वहां पे? बिल्कुल बिल्कुल, अवामी नेशनल पार्टी ANP सिंध में एक हकीकत है और ये एक कुव्वत, एक ताकत, या अवाम यहां बैठे हुए और पाकिस्तान के आईन के मुताबिक बैठे हुए हैं। हम किसी ड्रग माफिया, लैंड माफिया, टप्पे माफिया की बात नहीं करते। यहां जो लोग अपना ट्रांसपोर्ट रिक्शा चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चौकीदारी करते हैं, करने करते हैं, उनके बच्चों का वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट चाहिए जो लोगों के बच्चों को है। हमारे वालिदैन को भी वही इज्जत चाहिए जो लोगों की, और लोग अपने वालिदैन के लिए इज्जत चाहते हैं। हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे। यहाँ पे सिंध सिंधियों का है और कराची सिंध का ऐसा, खुदा उनके बच्चों का नसीब करे। लेकिन खान साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा और क्लियर कहा कि एक दूसरे के वजूद को मानना पड़ेगा। अगर कोई बोले कि नहीं हम इनको तालिबान का डब्बा लगा के, टेररिस्ट डब्बा लगा के यहां से चले जाएंगे, ये सदीक फारूक साहब सही कहता है कि आज से 15-20 साल पहले जाओ, 20 साल पहले कराची कारखाने, इंडस्ट्रियों का हब था, रोजगार था। अब यहां से बिजनेसमैन जो हमारे पंजाब के भाई वो मियां चुन्नू चले गए, कोई पख्तूनख्वा चले गए, कोई बलुस्तान जाएंगे, और जो कराची वाले जो शरीफ लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, वो दुबई और मलेशिया जा रहा है। तो यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से आप कह रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी शिफ्ट हो रही है। मुझे कंक्लूजन पे आना है, बहुत बता रहा हूँ, ठीक, मेरे पास वक्त कम है, बिल्कुल मेरे पास वक्त कम है। आखिरी बात शर्मिला से मैं बात करूँ। शर्मिला, मसले का हाल मुख्तसरन 30 सेकंड आपके पास बताइएगा। जी, मुझे आवाज नहीं आई इसमें आपकी। मसले का हल क्या है? 30 सेकंड से मेरे पास क्लोजिंग। देखिए, मसले का हल ये है कि अस्मा, अगर हम इस तरीके से आपस में इल्जाम तराशियां करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, तो ये मजीद मामला बिगड़ता जाएगा। हमने अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करनी है। अगर क्रिमिनल एलिमेंट्स पीपल्स पार्टी में, MQM में, ANP में है तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा, अपनी सफों से निकालना पड़ेगा और हमें अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करके मामला हल नहीं होंगे। पॉलिटिकल मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। उसके साथ साथ पुलिस की कैपेसिटी एनहांस करनी पड़ेगी और हमें जहां से जो मदद की जरूरत है वो हमें लेनी पड़ेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो अमन जो है वो पैगाम जाए स्ट्रांग। और मैं ये करूंगा कि पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करें, जो फार्मूला सामने आए उसे इंप्लीमेंट किया जाए। शाही सैयद साहब आपका शुक्रिया, शर्मिला फारूकी आपका शुक्रिया, सदीकुल फारूक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में कराची के हालात, वाकयात के हवाले से बात हुई। मसला लगता कुछ ऐसे ही है, कराची के कंट्रोल का है, बहुत सारी हकीकतें हैं, कहा जा रहा है उनको तस्लीम किया जाए, लेकिन जो कराची में असलहा है, कराची को असले से अगर पाक कर दिया जाए तो हालात, मामलात ठीक हो सकते हैं। इसमें सियासी जमातों को अपना किरदार मिल बैठकर अदा करना होगा और यही बात के इल्जाम तराशी से गुरेज ही किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि मामलात जो है मजीद बिगड़ भी सकते हैं। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।